Hello everyone, welcome to another episode of Tech Gala and today we have Ankush with us. So काफ़ी टाइम ये होता है कि कोऑर्डिनेशन या ट्रियोलॉजी अपने कैंपसेस में विजिट करती है बट कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता बट आज अपने को अंकुश मिले जो ट्रियोलॉजी में काम करते हैं एंड ही विल शेयर हाउ ही गॉट इनटू इट एंड आप लोग बीइंग अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ऐसा क्या मिस कर रहे हो जिस कारण से शायद आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो इस वीडियो देखने के बाद आपको ये डाउट भी क्लैरिफाई हो जाएगा सो बिफोर वी स्टार्ट अंकुश डू यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ अ बिट Yeah, sure. So, hi everyone. I am Ankush, and I completed my graduation in year 2022 from Triple IT Allahabad. And yeah, coordination was an on-campus placement. So, right after coming from college, coordination ही join कर लिया था मैंने. And yeah, process was same जो जिस process के through मैं आया था, that was same कि they have this test of I think pan India test कराते हैं, in which there is I think मेरे time पे there were 3 questions. तो आई वॉज एबल टू सॉल्व 2.5 ऑफ देम. 3 तो मेरे से भी नहीं हुए थे, तो दैट वाज आल्सो इनफ. तो उसके बाद फिर द नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट्स की दे विल बी इंटरव्यूज. एंड रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड लाइक दे हैव चेंज देयर प्रोसेस कि दे हैव दिस सी सैट एंड पी सी सैट एसेंशली. तो एक बार कोडिंग We को interned with Disney Plus Hotstar. So undoubtedly, Ankush was a competitive programmer. He did a lot of CP in his time. But काफी लोगों को ये नहीं समझ आता कि यार coordination करती क्या है. Because is it a HFT firm or is it a software development company or is it a I don't know what is it हाँ exactly. श्योर. So if you can explain now, yeah. All right. So sure, sure. So actually, coordination, you can say it's kind of a service-based company, not a product. क्योंकि इनका as such कोई product नहीं है that goes to the customer directly. तो जिसको customer use कर रहे हो. And I would say it's a service-based company क्योंकि coordination now is under Trilogy. And Trilogy as such is a very big company जिसके there are around hundreds of sibling companies or something. अब ट्रायलॉजी में स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन इज ट्रायलॉजी इनोवेशन पार्ट. दैट इज लाइक ट्रायलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट. So what happens is if any of these companies, जो 100 siblings companies हैं, if they need anything, it could be related to tech, it could be some mobile application, web application, anything that they need. It could be AI ML. They just come up to Trilogy Innovation and they put up their problem statements. And then Trilogy Innovation, where we have this you can say that management essentially they choose कि ठीक है हमारे पास कुछ projects हैं that we can pick up and we can deliver it to them. So वो projects हम pick करते हैं, then you get to choose कि तुम्हें किस project पे काम करना है. You work on it around 3 months is the max duration. 3 months काम करने के बाद then you deliver that product to the customer. If customer is satisfied, so it's handed over to the customer. Then you act as a kind of a support for initially because it's a MVC. So it's just minimum viable product that yeah, it is working, the concept is clear, it is working, and kuch customers on board karke you can show it to the customer that it's properly working. After that they hand it over to the customer and customer tests it on some beta platform or something like that. Or they have this other support team also, essentially technical team, which takes up the R project वो MVC take up करते हैं and then they make it into a final product that could be used in the market actually. तो large scale manipulation जो भी large scale management होगा and everything like कौन सा decision, why you chose a specific tech, all that is we actually noted down on all these decisions कि हमने कौन सा tech specifically किया. All these ITDs, we call them ITDs, that is technical decisions essentially, internal technical decisions. So after that, the final support team, they take over our project and they deliver it to the customer. That is how Trilogy works. कि कोई project आएगा and you get to choose and you work on it. And secondly, like being able to choose the project is also a plus point, I guess. क्योंकि being in Yeah, the current company, we don't get to choose. अपने को जो मिलता है उसी पे काम करना होता है. But now getting correct. to the entire hiring process, so resume बहुत important हो जाता है. Yeah, And since agree. maximum लोग जो CP करते हैं, they don't have any हाँ, projects in that. So आपका resume कैसा था? And if you want to suggest someone जो अभी college में and जो अभी maintain कर रहा है अपने resume, but he or she is a competitive programmer, so what all they should actually include in the resume to be liked by companies like Coordination? अंडरस्टूड. सो यार रेज्यूमे के बेसिस पे आई वुड से कि मेरा भी रेज्यूमे मेरे को ऐसा सच नहीं लगता था कि मैंने बहुत फाड़ कर दिया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है. बट व्हाट आई डिड वाज कि एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने उठाए थे जिस तरह जनरली जो हमारे कॉलेज में ऐसा ही पूरा रूटीन ही यही था. सीनियर्स यूज्ड टू टेल अस
कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए तुम्हारा एसक्यूएल पे, एक नो एसक्यूएल पे, एंड एसक्यूएल वाला शुड शो कि हाँ तुम्हें डेटाबेस मैनेजमेंट करना आता है, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस, ओएस की भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो एक प्रोजेक्ट तो उस पर पिक करना होता है, एंड एक प्रोजेक्ट जो तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स शो कर सके। अब डेवलपमेंट स्किल राइट ना हो तो क्योंकि AI/ML भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, तो अगर तुम चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट स्किल्स ज़्यादा नहीं आएंगे, बट जो भी कॉन्सेप्ट तुम यूज़ कर रहे हो लाइक AI/ML में, अगर तुम लीनियर रिग्रेशन या बेसिक्स जो मेरे को याद है लीनियर रिग्रेशन इस टाइप का कुछ यूज़ कर रहे हो, तो यू शुड बी नोइंग कि बेसिक्स क्या है इसके, और बेसिक्स को अगर तुम किसी भी हल्के से भी ट्वीक करके किस अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल कुड बी, अगर लेट्स सपोज यू आर वर्किंग ऑन रिएक्ट। अब रिएक्ट पे नॉर्मल वेबसाइट बनाना इज़ वेरी कॉमन, सब बना लेते हैं, बट इफ़ यू कैन टेक इट अ स्टेप अहेड और एक रिएक्ट का क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो, तो क्रोम एक्सटेंशन पब्लिश करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स ऑल फ्री, और रिएक्ट का यू गेट टू लर्न ऑल्सो अ लॉट। तो गोइंग दैट एक्स्ट्रा स्टेप ना, दैट हेल्प्स यू आउट इन द, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू तुमसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इफ़ यू हैव समथिंग ऐसा यूनिक सा, तो इंटरव्यू का भी डेफिनेटली इंटरेस्ट है मोर कि हाँ कुछ तो अलग किया है इसने, और जो तुमने एक्स्ट्रा किया होता है सेंस वो बाकी लोगों में नहीं होता, तो तुमने पक्का उसके बारे में पढ़ा होगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ा होगा तो यू आर कॉन्फिडेंट। दैट इज़ वॉट एक्चुअली ट्रायलॉजी सीज कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आई थी उसे, उस प्रॉब्लम को उसने कैसे टैकल किया। दैट इज़ द मेन क्रक्स एट ट्रायलॉजी कि यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप CC नहीं भी करते हो, लेट्स सपोज nowadays ट्रायलॉजी में आई थिंक रेफरल्स भी चल रहे हैं, तो इफ़ यू नो समवन एंड दे हैव सम ओपनिंग, सिंस दे हायर ओनली फ्रेशर्स, अगर you have been referred तो कोडिंग के सीधा इंस्टेड ऑफ कोडिंग राउंड यू माइट गेट टू द इंटरव्यू फर्स्ट इनिशियली। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इज इटसेल्फ की जहाँ पे तुम्हारा बस रेज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, तुम्हारे रेज्यूमे से कोई भी एक दो प्रोजेक्ट, इट कुड बी एक्सपीरियंस और अ प्रोजेक्ट, उसी के ऊपर डिस्कशन होता है कि ठीक है तुमने कोई प्रोजेक्ट किया, तुमने क्या क्या सॉल्व किया उसमें, और तुमने स्पेसिफिकली तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था। इफ़ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट तो तुमने अगर लेट्स सपोज OAuth 2.0 कुछ इम्प्लीमेंट किया, या AI/ML में कुछ इम्प्रूवमेंट किया, तो वो क्यों किया। एंड सबसे जो मेजर चीज़ होती है दैट इज़ कि कोई भी टेक तुम यूज़ कर रहे हो, तो वट एवर इट्स ऑल्टरनेटिव, कि जो तुम्हारे पास थे बट तुमने चूज़ नहीं किए, तो दैट शोज़ कि हाँ तुम्हें एटलीस्ट अवेयरनेस तो थी उस टेक के बारे में, एंड यू चोज अ गुड ऑप्शन बेस्ड ऑन सर्टन कंपैरिजन या कुछ भी रीजन देके। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल। वो इफ़ यू गो दैट एक्स्ट्रा माइल तो ये सारी चीज़ें फिर अपने आप कवर होने लग जाती हैं, दैट यू टुक अप अ प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट, उसके बारे में पढ़ा, गॉट इनटू अ डीप अबाउट इट कि हाँ एक्चुअली कैसे कैसे चल रहा है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स ऑन द रेज्यूमे। एंड कमिंग टू द कॉम्पिटिटिव, इफ़ यू आर अ कॉम्पिटिटिव कोडर, तो आई थिंक कई बार होता है, मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज़ लिए थे उनमें आई सॉ कि जो कॉम्पिटिटिव कोडर्स थे उनके रेज्यूमे में सिंपल प्रोजेक्ट्स आते थे, HTML CSS के आते थे। तो एट दैट पॉइंट अब HTML CSS में गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क एनीथिंग। वो CSS के तुमसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्टाइलिंग एंड ऑल के, एंड वो कॉन्सेप्ट्स आर मोर और लेस, आई थिंक अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे खासे हो, ओनली देन यू वुड बी नोइंग अबाउट दैट। और ट्रायलॉजी में फ्रंट एंड डेवलपर आई थिंक थोड़े कम होंगे, क्योंकि इट्स मोर लाइक डिपेंडिंग, अगर दीज प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में नीड है, देन दे वुड बी नोइंग अबाउट इट, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, काम कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हार्ड कोर फ्रंट एंड डेवलपर होंगे, बिकॉज वहाँ पे ओवरऑल स्टैक देखना पड़ता है पूरा का पूरा। तो वो मैंने जो नोटिस किया था वो यही था यार कि रेज्यूमे में जो कॉम्पिटिटिव कोडर्स थे उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ बेसिक सा मिसिंग हो जाता था। कभी कोई डेटाबेस नहीं होगा, किसी डेटाबेस पे उन्होंने काम नहीं किया, अगर डेटाबेस होगा तो OS के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होंगे, OS के बारे में उनको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, या तो सॉफ्टवेयर जो बेसिक वो सब्जेक्ट्स होते हैं एसेंशियली कंप्यूटर साइंस के, वो मिसिंग हो जाते थे। तो बीइंग अ कॉम्पिटिटिव कोडर इट्स एसेंशियल कि तुम अपने DBMS के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद करो, तुम्हें पता होने चाहिए SQL, नो SQL, व्हाट आर ट्रांजिशंस, लॉक्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। फिर कमिंग टू द OS पार्ट, यू शुड बी नोइंग जो बेसिक्स हैं, सीमाफोर्स हो गए एंड दीज डेडलॉक सिचुएशंस, ये एकदम बेसिक बेसिक्स है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट देम तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं यार यूट्यूब पे। इनफैक्ट जो मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया था, इट वॉज ऑन अ रिएक्ट ऐप फॉर चैटिंग एप्लीकेशन। उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट socket.io। तो आई डोंट थिंक मैं लकी था, उस टाइम पे socket.io ज़्यादा लोगों के प्रोजेक्ट्स में नहीं थे, मेरे कॉलेज में भी। तो इट वॉज समथिंग विच वॉज थोड़ा सा अलग, तो इंटरव्यूअर को भी देख के लगा था कि हाँ ठीक है कुछ तो अलग किया इसने। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि यार ये सब तो ठीक है, हमने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा, हमने लोड बैलेंसिंग पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशन कोई स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे करना इज़ वेरी टफ। तो एक NGX करके था,
यूजिंग दैट आई वॉज एबल टू डू दिस लोड बैलेंसिंग ऑल्सो. 5-6 सर्वर स्टार्ट किए एंड NGX के थ्रू वो लोड बैलेंस हो जा रहे थे. मैंने लोकली अगर 5 टर्मिनल पे भी 4 सर्वर स्टार्ट किए हैं, तो जब भी मैं रिक्वेस्ट मार रहा था दे वर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो भले ही बहुत छोटा सा लेवल, मतलब सोचने के लिए इट्स नथिंग. 4 सर्वर स्टार्ट किए, एक NGX का सर्वर अप है जो बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तुम कौन से सर्वर में जाओगे वो डिसाइड कर रहा है. तो बट इसका जब मैंने डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था, तो इंटरव्यूअर वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि हाँ तुमने बेसिक ही किया, उसके ऊपर तो सब थ्योरी है, यू नो द थ्योरी, तुमने बेसिक इंप्लीमेंट कर लिया बस. तो दैट इज व्हाट मेक्स इट गुड. कॉम्पिटिटिव कोडर्स में ये थोड़ा मिसिंग हो जाता है. आई फेल्ट दैट हमेशा ही जब भी कोडिंग राउंड्स दिए हैं मैंने, तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जो या तो तुम्हारा DBMS हो या तो OS हो, जिसमें तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, दैट इज मस्ट. था. सो रेज्यूमे फॉर्मेटिंग कितना मैटर करता है, बिकॉज काफी लोग उसी में फंसे रहते हैं कि व्हाट इज अ परफेक्ट हाँ. फॉर्मेट जिसमें अपने को बनाना है, तो उतना कितना मैटर करता है फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग यार, फॉर्मेटिंग इज जस्ट फॉर कि कितना इजीली तुम्हारा रेज्यूमे इंटरव्यू कोई भी पढ़ पा रहा है, दैट्स इट. देयर इज नो सच प्रोसेस कि ऐसे स्क्रीनिंग होने वाली है इंटरव्यूज की, रेज्यूमेस की या ट्रायलॉजी. अगर तुम रेफर्ड हो तो यू विल डायरेक्टली गेट टू द इंटरव्यू. इंटरव्यू के पास तुम्हारा रेज्यूमे होगा. अब वो पढ़ेगा तो है ही, अगर क्योंकि उसे क्वेश्चन पूछना है तो वो तुमने कुछ भी लिख रखा हो, तुमने जर्मन में लिख रखा हो, कन्वर्ट करके पढ़ेगा, बट पढ़ेगा तो इट्स नेसेसरी. बस वहाँ पे वही पॉइंट आता है कि अगर इंटरव्यूअर इतनी एफर्ट डाल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, एंड उसके बाद उसका वहीं से थोड़ा सा लो हो जाता है कि यार ये क्या सीन है, जो इतनी इजीली लिख सकते थे कि एक पेज में यू कुड हैव क्लियरली मेंशन कि एक प्रोजेक्ट ये रहा, उसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने की, ये टेक स्टैक था. अब इतना अगर दिख जाता है इंटरव्यूअर को तो इट्स बिकम्स वेरी इजी कि ठीक है अब मैं यहाँ से कैरी ऑन कर सकता हूँ. उसने रिएक्ट यूज़ कर रखा है, रिएक्ट के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ किया उसने, देन आई कैन गो इनटू डेप्थ कि हाँ ठीक है प्रोजेक्ट में उसने अगर कहीं यूज़ मेमो या यूज़ कंटेक्स्ट यूज़ किया है तो वो क्यों यूज़ किया. फिर वो इट गोज ऑन ग्रेजुअली कि ठीक है एक एक डिटेल्स अंदर आती रहती हैं. तो फॉर्मेटिंग का एज सच इतना बड़ा रोल नहीं होता, बट इन जनरल द मेजर कॉन्सेप्ट इज हैव इट क्लियर. जो भी काम कर रहे हो क्लियर क्रिस्प छोटे छोटे सेंटेंसेज में हर प्रोजेक्ट के 2-3-4 पॉइंट्स, कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया है, अगर इतना क्लियरली मैंशनड है दैट्स बेस्ट. एंड कमिंग टू द, कई बार मैंने देखा है कि रेज्यूमे में ना नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक कि तुम किसी स्पोर्ट्स के फेस्ट थे, मैनेजर थे या कुछ भी था तुमने ऑर्गेनाइज कराया, दैट इज़ डेफिनेटली नेसेसरी. इनफैक्ट MNCs में कोऑर्डिनेशन नहीं बट अदर MNCs में इट्स आई थिंक पेड गिवन सम वैल्यू ऑल्सो. तो कमिंग टू कोऑर्डिनेशन, अगर वो चीज़ें हैं आपके पास तो ऑलवेज मेंशन इट एट द बॉटम या फिर कहीं साइड में. इट्स लाइक हाईलाइट ऑफ योर रेज्यूमे शुड बी जो प्रोजेक्ट्स तुमने किए हैं एंड जो तुमने उस पर टेक स्टैक यूज़ किया है, दैट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर टीम वर्कर, दैट इज़ नोन. मतलब वो तुम्हारा इंटरव्यू इसी प्रोसेस के लिए है, वो यही चेक करने आया है. अगर उसको ये पता चल जाएगा इसको किस बेसिस पे चेक करना है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. कि उसको ये तो पता है ठीक है हाँ इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे नाउ आई कैन चेक कि हाँ ठीक इसने कैसे काम किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया. तो फॉर्मेटिंग मैटर्स ओनली टू दिस एक्सटेंट कि इट शुड बी क्लियर. जितने भी काम प्रोजेक्ट्स किए हैं टेक स्टैक क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और जो माइनर डिटेल्स हैं ऑल योर्स की योर ईमेल एंड ऑल दैट शुड बी देयर, दैट्स इट. एंड एक जनरल ट्रेंड जो हमेशा से इंडस्ट्री में कि ट्राई टू सिंस ट्रायोलॉजी हायर्स ओनली फ्रेशर, तो सिंगल पेज रेज्यूमे इज मोर प्रेफर्ड. बिकॉज 2 पेज में यूजुअली फ्रेशर्स के पास इतना होता ही नहीं कि 2 पेज तक जा पाए यार. तो इट्स प्रेफर्ड कि सिंगल पेज में जितना अच्छे से आ जाए क्लियरली, इट शुड बी मतलब So आपको बस since ये दिखना also चाहिए यार folks कि who are हाँ क्लियरली watching and दिखा हुआ है, curious दिख about रहा है बस. Nginx, I That's will be releasing it. videos shortly for that, so make sure to hit the subscribe button. Now, talking about the coding test, maximum लोग का इधर ही कट जाता है. तो आपने Sure. आज मेंशन किया आपने 2.5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अगर आपको याद होगा, हाँ. सिंस इट इज बीन अराउंड 1.5 इयर्स आई गेस, बट अगर कुछ याद है किस बारे में क्वेश्चंस थे, व्हाट ऑल एल्गोरिथम्स, कुछ भी रिलेटेड अगर आपको याद होगा तो. हम्म. Uh, पहला क्वेश्चन तो मेरे को याद है, कोई पहला क्वेश्चन वाज डीपी या ट्री से रिलेटेड था. वो मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो तुम अगर लीड कोड मीडियम सॉल्व कर पा रहे हो और हार्ड 1-2 भी हुए हैं तुमसे तो मे बी तुम सॉल्व कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन उनका ऐसा था जो मतलब सोचा भी नहीं था मैंने, वो कोड फोर्सेस वाला पूरा काइंड ऑफ क्वेश्चन था. उसमें कोई ट्री सैक यूज़ कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट टर्म, बट कुछ तो था उस टाइम पे जो मैंने पढ़ा था कभी कि हाँ ठीक एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है जिसमें सैक्स वगैरह बनते हैं ट्री के. अब आई डोंट रिमेंबर एक्सप्लिसिटली, बट कुछ ऐसा था जो नॉर्मल कोडिंग से हटके था. इफ़ यू आर अ नॉर्मल कोडिंग, तुमने लीड कोड वगैरह किया है तो भूल जाओ, वो चीज़ नहीं हिलने वाली थी. इट वॉज फॉर श्योर. अगर तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग देखी है, उसके कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो पढ़े हैं कभी,
देन ओनली इट वाज एबल लाइक तभी वो क्लिक करता तुम्हें, नहीं तो वो चमकेगा ही नहीं कि यार करना क्या है इसमें, कुछ भी करोगे टेल ही देगा या कुछ ना कुछ फंसेगा। ये दो मेरे को याद है, तीसरा वाला तो आई डोंट रिमेम्बर, वो तो शायद मैंने फिर वही किया था कि टेस्ट केसेस जो दिख रहे हैं उठा उठा के पास कर दो यार, मेरे में दो में ही हो गया था कि ओके अब नहीं ओके हो रहा, सो जो उसमें तो जो टेस्ट आफ्टर केसेस है दिस वही उठा कोडिंग उठा के राउंड, प्रिंट तो करा उसमें के बस बस ठीक है जो ये निकल ऑनलाइन गया। टेस्ट होता है उसमें बस कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ एप्टीट्यूड वगैरह नहीं रहता, राइट? उसके बाद ही आपको कॉल आया था इंटरव्यूज के लिए। सो अगर आपको याद होगा कितने राउंड्स थे, अप्रोक्सीमेटली क्या कवर हाँ हुआ करेक्ट। था? सो हाँ हाँ श्योर, ये तो यार अच्छे से याद है, ट्रायलॉजी का था तो आई रिमेम्बर पहला राउंड हुआ था मेरा, कोडिंग राउंड था जिसमें दो एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, तो कोडिंग का क्वेश्चन था एंड अराउंड आई थिंक 1 घंटे का राउंड था ये। क्वेश्चन मेरे टाइम पे पता नहीं समहाउ इट हैपेंड कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रायलॉजी आ रही है तो इट वुड बी आस्किंग, जो उन्होंने कॉम्पिटेटिव कोडिंग का क्वेश्चन पूछा है उससे ही कुछ फाड़ सा मैथ वैथ का पूछ लेंगे। तो आई वाज लाइक कि अगर ये पूछा तो चांसेस तो कम है, अगर ऐसा कुछ फाड़ वाड़ पूछ ले 1 घंटे में सॉल्व करना इसे। बट कम क्वेश्चन वाज रिलेटिवली इजी, वो लीड कोड हार्ड कट टाइप का क्वेश्चन था। एक ये हुआ, इसके बाद फिर देर वॉज दिस उसको काइंड ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन राउंड ही मानो, बिकॉज उसमें एच एम वाले क्वेश्चन नहीं थे, बस पूरा प्योरली सिस्टम डिज़ाइन था। मेरा रेज्यूमे लिया, एक प्रोजेक्ट लिया, उसके बारे में पूछा, सिस्टम डिज़ाइन, लोड बैलेंसिंग एंड ऑल दैट, फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी कि ये डिज़ाइन करना है, कैसे करेंगे, और उसके एल्गोरिदम्स वगैरह, क्या कौन सा टेक यूज़ करोगे, प्रोज कॉन्स, ये सब हुआ। वो चला था अराउंड आई थिंक 1.5 घंटा चला था वो, होना 1 घंटे का था बट वो 1.5 घंटा खिंचा था। तो बिकॉज तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है, अगर बंदा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो कुछ तो अच्छा जा रहा है। एंड उसके बाद फिर दे हैव दिस फाइनल राउंड। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, हाँ, दिस प्रोसेस वॉज फॉर आई थिंक मेरे टाइम के बाद ये प्रोसेस चेंज हो गया, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज लिए थे तो डिफरेंट हुआ था। तो इसके बाद देयर इज दिस लास्ट राउंड जो सीटीओ लेते हैं उनके, राहुल सुब्रमण्यम है वो जाके लेते हैं, मोस्टली वही आते हैं। और इसमें इट इज़ मोर लाइक एच आर राउंड, कि वाई डू यू वांट टू जॉइन ट्रायलॉजी एंड ऐसा क्या है ट्रायलॉजी में, ऑल दैट। बस वो आई थिंक 15 मिनट का था, इट मैक्सिमम इट गेट्स एक्सटेंडेड टू 30 मिनट्स। ओके, सो तो फर्स्ट राउंड बेसिकली में ये इट जो इज स्टार्टिंग के 2 राउंड थे रिज्यूमे के ऊपर देवर ऑफ बातचीत एसेंस, प्लस कि अ इन दोनों क्वेश्चन में यू जो गेट टू करना है सॉल्व, करना है। एंड द सेकंड राउंड इज ओनली अबाउट सिस्टम डिजाइन। ओके यप, एक्चुअली ये सिस्टम फॉर मेरे टाइम पे दिस वाज द हाउ इट वाज, कि थोड़ा सा रेज्यूमे देखा इधर उधर एंड उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सीधा डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड बट अभी जो मैंने इंटरव्यूज लिए, दे हैव चेंज देयर पैटर्न। तो अभी उनका सीन ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड इज ओनली योर रेज्यूमे स्क्रीनिंग, जिसमें बस तुम्हारे रेज्यूमे से ही चीज़ें पूछी जाएंगी। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट है, बस उसी से पूछा जाएगा सब कुछ। देन कम्स द सेकेंड राउंड में इट्स प्योरली डीएसए राउंड, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डीएसए के। एंड वो भी ऐसे नहीं होते हैं कि आजकल तो मैंने नोटिस किया है कि दे आर नॉट लाइक कि बहुत एक्सट्रीम हार्ड पूछे जा रहे हैं, दे आर मीडियम लेवल या फिर हार्ड लेवल, टूवर्ड्स ऑन द हार्डर साइड ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस। देन कम्स द फाइनल राउंड। इस फाइनल राउंड में एच एम एंड एच आर होता है। सो ये जो थर्ड राउंड अभी हो रहा है, इट्स लाइक ये थर्ड राउंड मेरे में, फर्स्ट राउंड तुम स्किप कर सकते हो, जो रेज्यूमे स्क्रीनिंग था वो फर्स्ट एंड सेकंड एक में कंबाइन कर दिया था, तो रेज्यूमे स्क्रीनिंग बहुत ही कम हुई थी। वो एच एम राउंड जब आया था, जब फाइनल राउंड आया था, उसमें बहुत ज़्यादा हुई थी, जो अभी का थर्ड राउंड है। तो उसमें दे गिव यू ओपन एंडेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बस ऐसे कि चलो एक चीज़ बनानी है, बनाते हैं। अब उसके बाद क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सब तुम्हारे ऊपर है, सोचो पूछो, डेफिनेटली या। उतना ही नॉलेज इतने कॉलेज वाले बच्चों को होता है जो सीपी किए जा रहे हैं, एंड आपको बोले 3 रिसोर्सेज हाँ। ऐसे उठा के पढ़ो जिससे तुम्हारे इंटरव्यू क्लियर हो जाए। सो अब वो 3 रिसोर्स क्या होगा? इट कैन बी वीडियोस, इट कैन बी ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और एनीथिंग। ऑलराइट, मैं तो ऑनेस्टली वही चाहता हूँ, कॉम्पिटेटिव कोडिंग का नहीं बता रहा, क्योंकि तुम कॉम्पिटेटिव कोडर हो तो तुमने मेरे से बेटर ही कर ली होगी आई थिंक। तो लेट्स नॉट गो टू देयर, किसी ने कर ली है, अच्छी कोडिंग कर रखी है तो दैट्स फाइन, कोडिंग हो जाएगा उसका। कमिंग टू द पहला राउंड, तो तुम प्रोजेक्ट पे निकालने वाले हो, तो इट्स नेसेसरी कि तुम कोई एक प्रोजेक्ट अच्छा उठाओ, कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट। और आई एम नॉट सेइंग कि उसको बस बना दो, यूट्यूब वीडियो देखो, उसने कैसे कैसे हर एक स्टेप लिया है वो बताते हैं। मैंने भी यही किया था, 3-4 यूट्यूब वीडियो देखे रिएक्ट ऐप के, कि कर क्या रहे हैं ये लोग, वो सब, और सबसे एक एक पॉइंट उठाया था। कोई बंदा ज़्यादा के बता रहा था कि ये देखो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई बंदा आके बता रहा था दूसरी वीडियो में कि मैं यहाँ पे यूज़ मेमो यूज़ करूँगा। तो दोनों चीज़ें मैंने देखी, ठीक है, हाँ, यूज़ इफेक्ट भी कर सकता हूँ, मेमो भी कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना है वो मैं देख लूँगा। तो मैंने यूज़ मेमो यूज़ किया या फिर यूज़ इफेक्ट यूज़ किया रिटेन करने के लिए चीज़ें। तो ऐसे 3-4 वीडियोस जब मैंने देखे ना यूट्यूब के खुले खुले में, कि जो आप प्रोजेक्ट मेरा उस पर, तो मेरे को 3-4 अलग अलग पर्सपेक्टिव, जब अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं ना, कि ठीक है वो बंदे ने ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि रिएक्ट
यूज इफेक्ट एंड ये सब कैसे हुक्स कैसे होते हैं। दूसरे बंदे ने ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि तुम्हें यार ये लोड बैलेंसिंग अगर करनी है तो तुम उस पर कैसे ध्यान दोगे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स तुम्हें पता चल जाते हैं। एक ही प्रोजेक्ट है बट हर बंदा अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उसके एक्सप्लेन होते हैं। तो मैंने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ उठाया था कि एक ही चीज़ है, उसको 5 तरीके से अलग तरीके से देखूंगा तो 5 अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं कि ठीक है ये कर सकते हैं। तो ऐसे आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक चैनल, यूट्यूब पे सीधा ही सर्च करता हूँ मैं रिएक्ट एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट ऐसे करके, जो 5 आ गए उठा के देख ली, नहीं तो उस टाइम पे जो दोस्त ने सजेस्ट कर दी। तो एज सच कोई फॉलो नहीं था। देन कम्स द सिस्टम डिज़ाइन राउंड। उसके लिए फॉर स्पेसिफिकली फॉर ट्रायलॉजी एंड जो कंपनीज लेते हैं स्पेसिफिकली उन्होंने बोल रखा है कि हम लेते हैं ऐसा सिस्टम डिज़ाइन। तो एक बुक वाज देयर, आई थिंक ग्रोकिंग की बुक थी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। तो आई वेंट उसको थोड़ा पढ़ा था मैंने, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, जीएफजी के जो लास्ट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली देखे थे मैंने। मेरे टाइम पे आई थिंक नोट पैड वॉज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता था ट्रायलॉजी में, कि नोट पैड डिज़ाइन करना है तो उसका सिस्टम डिज़ाइन पूरा देखते हैं कैसे करना होगा। वो चीज़ तो मैंने ग्रोकिंग वाली बुक है उसके थ्रू देखा था। एंड अब तो आई थिंक कई सारे वीडियोस भी आ गए हैं। मेरे टाइम पे केवल गौरव सेन वॉज देयर जो सिस्टम डिज़ाइन पढ़ाते थे अच्छे से, और मेरे को उन्हीं का पता था, तो मैंने उन्हीं से वीडियोस देखे थे, उन्हीं के सारे कि ठीक है लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है, एंड ये सिंगल डायरेक्शनल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, आप एपीआई होती क्या है। तब तो मेरे को इतना पता भी नहीं था क्लियरली कि ठीक है एपीआईज वगैरह होती कैसे हैं, socket.io ये सब कैसे काम करते हैं, लोड बैलेंसेस। तो मैंने गौरव सेन से देखा था। अब तो बहुत ही हज़ारों वीडियो, अगर तुम जोमेटो भी सर्च करोगे किसी का भी देखोगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार बेसिक्स पढ़ लो, पता चल गया ठीक है कंसिस्टेंट हैशिंग ऐसे टर्म्स होते हैं। अब 15 वीडियो देखोगे तो सब में अलग अलग वापस पर्सपेक्टिव, सारा काम आ जाएगा। कोड फोर्सेस ही, हाँ कोड फोर्सेस ही है अगर सीपी करनी है तो दैट्स आई थिंक वही है। अदरवाइज क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे इट्स लाइक कुछ कंपनीज आएंगी जो हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगी, तो उनके लिए डेफिनेटली कोड फोर्सेस इज देयर। अदरवाइज तो लीड कोड इज देयर कि अगर तुम्हें नॉर्मल जो जनरल चल रहा है एमएनसीज वगैरह उसमें निकालना है, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, मैं भी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लीड कोड ही हो गया था उस टाइम पे। तभी मैं कह रहा हूँ ना, इंटरव्यू के टाइम पे जब सेकंड राउंड आया तो फर्स्ट राउंड आया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ये कुछ पूछेगा फारसा अभी, और मैंने छोड़ दिए उस साइड कोड फोर्सेस, क्योंकि मेरे को एमएनसी में जाना था किसी या फिर अच्छी कंपनी में जाना था। वो आते हैं लीड कोड से सवाल, लीड कोड टाइप के सवाल, तो मैं उस साइड पे ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। बट मेरी किस्मत चल गई कि उन्होंने ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा, वो यूज़ हो गया। 2 प्रायोरिटी क्यू वगैरह को यूज़ करके करना था, वो सॉल्व हो गया, बैठ गया उस टाइम पे। ओके नाइस। तो आपने कुछ शीट वगैरह या उठा के या फिर एल्गोरिदम्स के लिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो मैंने देखा है कि लोगों का ओटी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, सो उसमें सीपी लेवल हाँ मान लो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस टाइप के एल्गोरिदम्स अपने को कहाँ मिल सकते हैं पढ़ने के लिए? यार मेरे टाइम प्रॉब्लम वॉज कि मेरे टाइम पे तो ना स्ट्राइवर था, तब लव बब्बर ने बस अपना आई थिंक स्टार्ट ही किया था जब मेरा निकला था, क्योंकि भले मैं 22 में ज्वाइन किया था, कर तो टेस्ट वेस्ट तो 21 में हुआ था ये। तो 21 में ना लव बब्बर का इतना था कि स्ट्राइवर ने शीट दे दी है, उन्होंने भी शीट वगैरह दे दी है। तब हमारा तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर तुम सीसी कर रहे हो, जो दोस्त सीसी करते हैं जो अच्छे हैं पहले से फाड़ हैं, उनको पकड़ के बैठ जाते थे कि भाई बता दे यार ऐसा क्या होता है। तो वही बताते थे कि देख ऐसा ऐसा है। हमसे तो 3 अगर क्वेश्चन होते हैं, जनरल ट्रेंड ये चलता था 3 क्वेश्चन हो रहे हैं अगर, तो मैं ठीक मानता था कि हाँ भाई 3 हो गए, सीसी के बहुत हैं कोड फोर्सेस के। चौथा 5वां कभी ऐसे ही पकड़ते, वो अपने में भिड़ते रहते थे, जिनको आता था वो डिस्कस करते हैं हमेशा। तो बस उनके साथ जाके बैठ भी जाओगे तो पता चल जाए कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पता चल जाता था कि देख ऐसा ऐसा होता है ये। तो अगर तुम जाओगे एक बार उनके सोल्यूशंस देख लेता था बस, एसेंशली जो सोल्यूशंस बाद में पोस्ट आते हैं सीसी के, बस वो एक बार देख लेता तो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते थे। और प्लस इसके अलावा हमारे कॉलेज में सीनियर्स भी कॉम्पिटेटिव कोडिंग की क्लासेस लेते थे, तो उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट जो उनको पता हैं, जो क्योंकि वो अच्छे कॉम्पिटेटिव कोडर्स थे हमेशा से, तो उन्होंने खुद ही डिटेल बना रखी थी कि ये टॉपिक्स हैं जो एडिशनल हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कोडिंग, ये आने चाहिए। तो वो चीज़ें पढ़ाते थे, तो वहाँ से टॉपिक्स तो मिल जाते थे, एंड उसको फिर खुद सीखना एंड दोस्तों से पूछना वो आके कर लेते थे। तो एज सच वही अगेन मेरा वैसा था कि जहाँ से जो मिल रहा है उठा के लेके आ जाओ, बाकी इधर उधर से पूछ पाछ के कर लो। तो एक कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाता था, फिर इधर उधर से पूछ पाछ के काम चल जाता था कि ठीक है बेसिक आइडिया लग गया, कभी कोई सवाल आया तो शायद हो सकता है ऐसा। ओके इसी बेसिस पे था कॉम्पिटेटिव कोडिंग का। यार मेरे को हाँ एक चीज़ और, आई थिंक स्पॉज भी काफ़ी अच्छे कराती है इन सब के मामले में। वो भी काफ़ी अवेयर करा देती है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, या फिर कॉम्पिटेटिव कोडिंग में क्या क्या डिफरेंट जॉनर है। तो वो भी मैं प्रेफर कर सकता हूँ। मैंने सुना था दोस्त करते थे जो अच्छा कॉम्पिटेटिव करते थे, मैं नहीं कर पाता था। मैं एक ही जगह बहुत हो जाता था मेरा कि ठीक है ये और लीड कोड इज एनफ, इससे ऊपर मेरा नहीं होता। ओके
नाउ सिंस यू वर ऑन द इवन अदर साइड ऑफ द टेबल, आपने इंटरव्यू लिया है, तो आपने देखा होगा काफी लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। मे बी यू आर फीलिंग कि इससे क्वेश्चंस बन जाएगा, या फिर इसका रेटिंग देख के या फिर इसका रैंक देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ इससे होना चाहिए, और उस पॉइंट पे वो हाँ। ऐसा कुछ कर देता है या फिर ऐसा कुछ बोल देता है या फिर कुछ भी होता है जिससे आपको लगता है नहीं इसको नहीं लेना। तो अगर आपको बोले कि लाइक 3 टिप्स फॉर इंटरव्यूज, आपका क्या रहेगा उस पर? सबसे पहली चीज़ तो यार बीइंग हम्बल, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर बंदे को बहुत अच्छे से, बहुत फाड़ कोडर है, उसको बहुत चीज़ें आती हैं, तो वो टोन ही चेंज हो जाता है भाई बंदे का। तो जब अगर टोन चेंज हो जाता है कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, 4 स्टेप बताए, सॉल्व हो गया। अगर तुम ऐसे करके चले आओगे कि ऐसा है मैंने सोचा, 4 स्टेप बनाए, हो गया, तो अब बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ वेरी गुड, वो होना भी चाहिए सबको। बट बीइंग एरोगेंट की वो दिख जाता है हल्का सा, कि इस बंदे को मैंने क्वेश्चन दिया, इसने शायद देख रखा है या इसे आता है, तो इसने सॉल्व तो कर दिया, बट वो एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो, यू शुड बी हम्बल। अगर हो सकता है मैंने कुछ कंस्ट्रेंट ना बताएं उस टाइम पे, कि ठीक है मैं पहले इनिशियली स्टार्ट करना चाहता हूँ ईजी से, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट दिए कि ये सारे हो जाने चाहिए, वो हो गए। अब मैं ग्रेजुअली लेके आता कि ठीक है अब थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, अगर ऐसा करना होता तो कैसे करते हैं। अब इस सिचुएशंस में ये होता है, जो बंदा पहले से ही दिख रहा होता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार ठीक है ये काम तो कर ले रहा है, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, बट ये फिर आगे और पीछे के इंटरव्यू के हम वो देखते हैं कि पुराना जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया, मैं जिसने 0 राउंड ले रहा होगा, उसने क्या डाला है, कि इसको चीज़ें आती भी हैं या फिर बस ये कॉम्पिटिटिव कोडर है। क्योंकि वहाँ पे हमें ये दिख रहा होता है ये बंदा एरोगेंट हो रहा है, तो टीम वर्क एंड ऑल वो सारी चीज़ें जो होती है ना, कि कोई एरोगेंट बंदा टीम वर्क नहीं कर पाएगा, उसको नई चीज़ें बताओगे तो नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि तुम चीज़ें सीखो, क्योंकि सब किसी को ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है। तो बीइंग अ बिट हम्बल कि ठीक है नहीं आ रहा है या फिर आ भी रहा है, तो मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, ये अप्रोच है, एक्सप्लेनिंग दैट अप्रोच कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा और सॉल्व हो जाएगा। अगर एक बार इंटरव्यूअर एग्रीज ऑन द अप्रोच, देन यू गो फॉरवर्ड, हाँ ठीक है इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व हो गया। एंड कंस्ट्रेंट्स पूछना, कि अगर कोई कॉर्नर केस है, थिंक ऑफ द कॉर्नर केसेस, कि क्वेश्चन तो ठीक है, कोई कॉर्नर केस जो तुम्हें दिखता है कि शायद मान लो उसने दे रखा है कि देयर आर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, तो पॉजिटिव में 0 वुडंट बी देयर, इट्स मेंशन कि पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं। तो यू हैव टू, अगर तुम ये सारी चीज़ें डिटेल्स में एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हो ना कि यू सेड पॉजिटिव नंबर्स, तो यू राइट इट डाउन ऑन द डॉक या कहीं पे भी कि ठीक है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 ओनली। तो इट गिव्स अ गुड, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अ पर्सन इज एक्चुअली लिसनिंग टू द डिटेल्स। तो अगर क्वेश्चन ट्वीक भी होता, थोड़ा इधर उधर भी करते, तो ही विल बी एबल टू सॉल्व इट, भले वो इंटरव्यू में सॉल्व ना कर पाए, बट अगर वो ये सारी चीज़ें उसने नोट करके रखी हैं, तो एटलीस्ट इतना है कि उसे अगर सॉल्व करने का और थोड़ा टाइम दिया जाए मे बी, तो ही विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि अब उसके पास वो चीज़ें रिटर्न है। अगर और वो चीज़ें पर वो ध्यान नहीं देता है, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, तो इट बिकम्स लाइक कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है इसने, सॉल्व तो कर दिया, अब ट्वीक कर दूंगा तो मे बी सॉल्व कर दें, नहीं कर पाए, मतलब इंप्रेशन डजंट गोज गुड। और आई थिंक जहाँ एक अप टू एन एक्सटेंट, सब इंटरव्यूअर भी एक ह्यूमन है और सामने वाला भी ह्यूमन है, और एक एरोगेंट बंदे से बात करके कंपेरेटिवली एक हम्बल बंदे से बात करके, डेफिनेटली हम्बल बंदे से अच्छा फील आएगा कि हाँ ठीक है इस बंदे के साथ एट दी एंड तो काम तो मेरे को ही करना है ना जब ये ज्वाइन करेगा, तो अब कैसा बंदा है आई कैन डिसाइड दैट, और इसीलिए मैं इंटरव्यू ले ही रहा हूँ। तो इट प्लेज अ मेजर रोल कि तुम यू आर हम्बल, यू आर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स, कॉर्नर केसेस लिख रहे हो, अप्रोच एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड ऑल दिस। एंड आफ्टर ऑल दिस आई थिंक जनरली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट। तब अगर इंटरव्यू का मन है कि हाँ तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो वो और पूछ लेगा, 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेगा, ऐसी बस कि मज़े के लिए कि ठीक है बताओ अच्छा ऐसा होता तो क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन है ये, तुम क्या सोचते हो, इसका सोल्यूशन बता दो, बस कोड वोड मत लिखो, बस बता दो। तो इट गोज़ अलॉन्ग अ वेरी स्मूथ डायरेक्शन कि ठीक है बंदा भी इंटरेस्टेड है, इंटरव्यूअर भी, और जो बंदा बता रहा है ही इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ अब वो सेटल हो चुका है इंटरव्यू में भी, कि ठीक है ऐसा ऐसा जाएगा। ये 2 चीज़ें आई वुड से, कि पेइंग अटेंशन टू द दीज डिटेल्स कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, एंड द अदर डिटेल इज़ बीइंग हम्बल। अगर तुम्हें आती भी हैं चीज़ें, कॉम्पिटिटिव कोडर्स के साथ मैंने नोटिस किया यार ये दिक्कत हो जाती है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ नेचुरल थिंग ऑल्सो कि तुमने बहुत अच्छा किया है, डेफिनेटली यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर डोमेन, तो यू एक्सेल की एक टाइम पे तुम बोलिए देते हो कि ये तो मैं कर लूँगा, कोड क्या ये कोऑर्डिनेशन तो निकाल ही लूँगा, बट फिर वो आगे पीछे कुछ और फैक्टर्स आते हैं जो ये चीज़ को, अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है तो वी डोंट प्रमोट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ थोड़ा सा और इसमें, जैसे आप बोले क्वेश्चंस पूछते हैं फिर मैक्सिमम इंटरव्यूअर्स, सो इज देयर एनी सेट लिस्ट दैट यू गाइस फॉलोज, या फिर तब जो मन में आया पूछ लिया, इस स्टेप पे रहते थोड़ा? मेजरली ट्रायोलॉजी में दे डोंट प्रोवाइड एनी सच लिस्ट, ओके, उन्होंने बस ये बोल दिया होता है कि यू हैव टू गो टेक इंटरव्यूज,
इनिशियली हम लोग शैडो करते हैं, तो ताकि एक दो इंटरव्यूज देंगे कि यू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए. देन देयर इज इट इज टोटली अप टू यू कि तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना हो. तुम्हें कोड फोर्सेस का अगर मन कर रहा है एफ भी लेके आके पटक दो कि हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं. मुझे खुद नहीं आता, लेकिन तुम अप्रोच तो बता रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो फाइन कि तुम अप्रोच बता पा रहे हो, कि सोच पा रहे हो. क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट इज ये नहीं देखना कि तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके तुमने लाख कर रखे हैं. मेन कॉन्सेप्ट इज कि प्रॉब्लम थी तुम्हारे सामने, तुमने उसको कितना ब्रेक डाउन कर पाए एक प्रॉब्लम को. ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम ये है, छोटी छोटी 5-6 प्रॉब्लम बनाई जो भी दिख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स उसके हिसाब से, और एक एक करके कॉन्कर करना स्टार्ट किया कि ठीक है ये वाली इस तरीके से सॉल्व करूंगा. अगर फीफो कहीं पे यूज हो रहा है या फिर लीफो यूज हो रहा है तो स्टैक यूज करना चाहिए, क्यू यूज करना चाहिए. वो आइडियाज तुम प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं. इफ यू आर एबल टू डू दैट देन दैट्स बेस्ट. वही इंटरव्यूअर वही देख रहा होता है. एंड मेजरली लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं कि वो ढूंढते हैं इधर उधर कुछ क्वेश्चन होगा, उसको थोड़ा मूड ट्वीक कर देंगे कि लीड कोड का कोई हार्ड क्वेश्चन दिखा, उसके जो नीचे वो रहते हैं ना कई बार कि कुछ तो रहता है कि सॉल्व इट इन ओ ऑफ एन. भले ही सॉर्टिंग करनी है वो तो सीधा सॉर्ट फंक्शन यूज करके कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू डू इट ओ ऑफ एन. तो वो जो एडिशनल क्लॉजेज रहते हैं उनके बेसिस पे कई बार लोग यूटिलाइज करते हैं उनको. क्वेश्चन तो सिंपल है बट कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स के साथ. Okay. Now, getting back again to your journey a bit. So, आपने हाँ. ऐसा एक्स्ट्रा क्या था? Like, what do you feel was, right at that point कि जिससे like मैक्सिमम लोग का नहीं होता and आपका हुआ था. So, what all things you did extra or the extra mile that you went for, जिससे आपको लगता है कि it was the reason for your success? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग कॉन्फिडेंट. क्योंकि हमारे टाइम पे जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था तो उससे एक दो कंपनीज आई थी पहले जिसमें मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, तो वो पता चल गया था इंटरव्यूज़ देते टाइम. ऐसा बीच में एक स्टेट आता था कि मैं बोलना तो चाह रहा हूँ लेकिन क्या बोलूँ, इसको कैसे समझ में आए इंटरव्यू को, वो आई वॉजंट एबल टू डू दैट. तो एक दो के बाद मेरे को वो रियलाइज़ हो गया था कि ये मेरा लूप होल है, ये मेरा ड्रॉप, अच्छा सीन नहीं जा रहा है, इधर पे ठीक करना पड़ेगा कुछ. तो वही फिर दोस्तों से डिस्कस किया, उनको बताया कि ये देख ऐसे ऐसे अटक रहा है. एक दो मॉक लिए दोस्तों से, सीनियर से बात की, तो उन्होंने यही बोला कि इतना मत सोचा कर इंटरव्यू में, जो तूने किया है बस वो बताया कर. तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट वाज बीइंग कॉन्फिडेंट. अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो इट गिव्स अ रियली गुड इंप्रेशन कि सामने वाले बंदे को देख के पता चल जाता है. वो जब तुम स्टार्टिंग में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट ही करोगे ना एक्सप्लेन करना कि मैंने ये किया ये किया ये किया, और इसमें फिर अगर तुमने कुछ अच्छा किया होगा तो यू विल मेंशन कि इसमें ना ऐसे कुछ हो रहा था तो मैंने ऐसे करके सॉल्व कर दिया था. तो जब ऐसी माइन्यूट डिटेल्स बताना स्टार्ट कर देते हो ना, तो सामने वाले बंदे को लगता है कि हाँ ठीक, इस बंदे ने कुछ तो किया, प्रॉब्लम सॉल्व की है. तो अगर फिर वहाँ से यू बिकम कंफर्टेबल एसेंशली इंटरव्यू में कि तुम सेटल हो रहे हो. आगे 1 घंटा जो भी आने वाला है, आधे घंटे में तुम सेटल हो गए, इंट्रो होगा. 1 घंटा जो भी आने वाला है उसमें कोई भी रैंडम प्रॉब्लम ही वो फेंकने वाला है, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट. तो बीइंग कॉन्फिडेंट वाज वन ऑफ देम. एंड मैंने कोई कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं छोड़ा था कि कई बार होता है कि सिस्टम डिज़ाइन छोड़ दिया, यार ठीक है सारी कंपनीज नहीं पूछती हैं सिस्टम डिज़ाइन, छोड़ो देखा जाएगा. तो माय गोल वाज कि सब पढ़ लेता हूँ क्या जा रहा है. अगर मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर ही ली है, प्रोजेक्ट मैंने पहले ही बना रखे थे, प्रोजेक्ट्स में इतना कुछ है नहीं. प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने खुद अपना एक राइटअप वगैरह प्रिपेयर करके रख लिया कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने यूज़ किए, मैंने इस प्रॉब्लम ऐसी जगह पे मेरे को प्रॉब्लम्स आई, ऐसे सॉल्व की. वो राइटअप मेरे पास 2-3 पन्ने का पहले से रेडी है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. 1-2 इंटरव्यूज़ के बाद यू गेट टू नो ऑल्सो कि अच्छा इस पर बैकफायर हो रहा है, ऐसा सवाल आ रहा है सामने से, और जो मेरे को नहीं पता है तो मे बी मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊँ तो वो बैकफायर कम हो सकता है. वो क्वेश्चन मैं थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके. तो वो 1-2 इंटरव्यूज़ के बाद पता चल गया था. तो फिर वो रिदम बैठ गया था मेरा कि मेरे पास 2 पन्ने की स्क्रिप्ट है, मेरे प्रोजेक्ट है, मेरे को पता है मैंने क्या बोल रखा है, क्या बोलना है इसमें, और कौन से पॉइंट पे वो क्या चीज़ पूछने वाला है. कई बार वो भी हो जाता है कि ठीक है अगर मैं लोड बैलेंसिंग बोलूँगा वो आएगा कुल मिला के एंडिंग में कंसिस्टेंट हैशिंग पे ही, तो वो मेरे को एक्सप्लेन करनी है. तो वो जब तुम ये सब चीज़ें 1-2 इंटरव्यूज़ देते हो तो यू गेट टू नो अबाउट इट. फिर यही चीज़ है कि कवरिंग द एंटायर ब्रेथ एसेंशली, कि तुमने चीज़ें पढ़ रखी हैं, डीबीएमएस भी पढ़ रखा है, तुम्हें आता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस भी तुमने देख रखा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम्हें पता है, तुमने रिएक्ट देख लिया, रिएक्ट के अलावा कोई और फ्रेमवर्क है, व्यूज और जेएस ये सब भी हैं, तुम्हें थोड़ा बेसिक्स पता है कि रिएक्ट इनसे बेटर क्यों है, उतना ही बहुत है. व्यू जेएस तुमने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा रिएक्ट ज़्यादा फ्रेंडली है, ज़्यादा लोगों को आती थी रिएक्ट, ये सब चीज़ें. तो कवरिंग दैट ब्रेथ एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, ये 2 चीज़ें थी जो मेरे को आई थिंक जो हमेशा ही काम आती हैं. इनफैक्ट अगर आप बाद में भी जाओगे, इंटरव्यूज़ ले भी रहे हो, तो कई बार होता है इंटरव्यूअर जो बंदा होता है वो भी इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट इफ़ यू आर एबल टू मेक हिम कंफर्टेबल इन दैट इंटरव्यू, तो वो भी एक ऐसे ही आता है. अगर तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम पूछ रहे हो अच्छा ठीक है ये बता दे लो टोन वगैरह में, तो वो सेटलिंग नहीं हो पाती है. डाउन द लाइन मैंने यही, और जितने भी लोग ट्रायोलॉजी में थे मैंने उनसे भी बाद में बात की कि तुम्हारा कैसा हुआ था इंटरव्यूज़. सबका यही सीन था कि यार सब कवर कर रखा था, पढ़ तो सब रखा था,
बट जब भी कोई इंटरव्यू होता था तो वो कॉन्फिडेंट रहना होता था कि ठीक है मेरे को आता है, अगर नहीं आता चीज़ें तो मैं क्लियरली बता देता कि मेरे को नहीं आता, मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं है, बट आइडिया मेरे को लगता है शायद ये हो सकता है इसका। अगर वो नहीं होता था तो सिस्टम डिज़ाइन वैसे भी ओपन एंडेड सवाल होते थे, मैंने पिच किया एक आइडिया, उसने सही नहीं लगा, उसने कैंसिल कर दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, उसने एक ड्रॉबैक दे दिया कि देखो ऐसे ये दिक्कत आ रही है इसलिए नहीं हो पाएगा। नाउ दूसरा अप्रोच देनी है, कुछ और सोचना है, तो कुछ और जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ उसे। तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में जाता है पूरा का पूरा, ये पूरा चीज़ें अगर तुम 5-6 ऑप्शंस भी दे रहे हो, इट गोज़ इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे कि यू आर एबल टू रीजन आउट थिंग्स ना, एटलीस्ट ऑप्शंस तो पुट अप कर पा रहे हो। एंड वो तभी होगा इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो यू वुडंट बी एबल टू थिंक, ये 5-6 चीज़ें रटी हुई हैं, उसके अलावा तो एक कोई भी नई चीज़ आएगी तुम बोल ही नहीं पाओगे कि आगे सोचना क्या है। ओके, सो दैट वाज लाइक यही दोनों चीज़ें थी आई थिंक। मैक्सिमम लोग जैसे रहते हैं ना, हाई पैकेज हो गया, इंटर्नशिप का टाइम 1.5 लाख का स्टाइपेंड हो गया, ये सब देख के काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है भी नहीं। बट ये अपने को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्क लाइफ कैसा रहता है, लाइक बिकॉज इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी दैट यू मेंशन। सो इज इट लाइक हाँ, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, जैसे इफ यू कंपेयर विद, बिकॉज मेरे दिमाग में सर्विसेज सुनने के बाद एसेंचर, टीसीएस, ये सब आता है। सो आई एम नॉट श्योर ट्रायोलॉजी हाउ इट वर्क एक्चुअली। सो कैसे रहता है हाँ। एक्चुअली वर्क लाइफ? मेरे दिमाग में भी यही आता था यार, टीसीएस ही आता था। किसी को भी बोलोगे सर्विस बेस्ड कंपनी, टीसीएस में काम कर रहे हो क्या, मतलब कॉन्सेप्ट मेरा भी यही रहता है। मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई टीसीएस तो काम कर रहा है तो क्या बोल रहा है इतना। तो आइडिया इज कि ट्रायोलॉजी में यू गेट दैट फीजिबिलिटी ना, कि यू आर एबल टू चूज योर प्रोजेक्ट्स, कि तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है, यू गेट दैट थिंग। एंड आइडिया एसेंशली इज कि तुम कोई भी टॉपिक या प्रोजेक्ट ले रहे हो तो द मैनेजर, हाँ एसेंशली टीम बहुत छोटी होती है ट्रायोलॉजी में, कोई भी प्रोजेक्ट लोगे तो दे वुड बी अराउंड 3 to 4 पीपल इज द मैक्सिमम टीम साइज जो होने वाला है। तो दे वुड बी अ मेंटोर, वो मेंटोर इज एसेंशली वीपी और अ लीड हु टेक्स केयर कि प्रोजेक्ट का पूरा गाइडलाइन क्या होना है। तुम आइडियाज पिच करो कि शायद ऐसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, तो यू गेट इनटू अ मीट, यू थिंक ऑफ इट, वो तुम्हें बोल देगा कि ठीक है अगर इसका फ्रंट एंड बनाना है या फिर बैक एंड बनाना है, तो बैक एंड के लिए थिंक ऑफ ऑल द एंड पॉइंट्स जो तुम सोच सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यू प्रिपेयर एन आईटीडी की ठीक है ये 5-6 एंड पॉइंट्स है, पोस्ट अगर मान लो इंस्टाग्राम काइंड ऑफ थिंग है कि एक पोस्ट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, अपडेट डिलीट, ये सब चीज़ें मेजर। तो यू प्रिपेयर दैट आईटीडी, उसको राइट अप करते हो प्रॉपर्ली, और वो जो लीड या मैनेजर होता है वो आके उस आईटीडी को ही पढ़ता है, ताकि अभी कोडिंग कुछ स्टार्ट नहीं होती है इनिशियली, बस वो आईटीडी को पढ़ता है कि तुम सोच किस बेसिस पे रहे हो। एंड फिर आके उस पर डिस्कशन होता है कि नहीं इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, इसको ऊपर नीचे करो, देखो यहाँ पे ये मिस आउट हो गया है, वो पिन पॉइंट कर देता है कि यहाँ पे देखो ये मिस आउट हो रहा है, अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनिशियली इट, क्योंकि इन सब चीज़ों में इट गोज़ मोर लाइक ए सिंक, ये वैसा नहीं होता कि तुमने डाल दिया दूसरा बंदा आके देख लेगा। इट्स लाइक तुमने अपना काम किया, 1 घंटे में बैठे तुमने ये डिज़ाइन पूरा डाला जो भी करना है, एंड पोस्ट कर दिया ग्रुप पे कि देख लेना यार इसे, वो आधे 1 घंटे में देख लेंगे। तो अब 3 घंटे बीत गए, अब 3 घंटे के बाद इट्स अप टू यू कि अब तुम्हें आज ही कोड करना है। हो सकता है एक दिन का तुम्हारे, इट्स एसेंशली लाइक तुम अपने गोल्स खुद डिफाइन करो कि तुमने क्या कर रखे हैं, एंड योर गोल्स शुड बी इनिशियली तुम अपने वीपी या लीड को बता दोगे कि आई थिंक 1 हफ्ते में हमें पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाना चाहिए। तो अगर वो वहाँ पे गलत हो गया तो वीपी विल टेल यू इटसेल्फ कि नहीं भाई 1 हफ्ता इज़ मोर, क्योंकि आर्किटेक्चर ऐसा हो ही नहीं सकता तुम 1 हफ्ते में पूरा डिज़ाइन कर दो, 2 दिन में करोगे, तीसरे दिन में खुद कुछ ना कुछ गलती आएगी और चौथे दिन में वो रिवैम्प होने वाला है। तो 2 दिन लो, बेसिक सोचो, एकदम बेसिक जो सोच सकते हो, एकदम करंट एप्लीकेशन टाइप सोचो और बना के दे दो मेरे को। तो वो 2 दिन में काम होगा, यू हैव योर सेट गोल्स कि 2 दिन में मेरे को ये करना है। उसके बीच में इफ़ यू गेट स्टक एनीवेयर तो डेफिनेटली यू कैन पिंग देम। अगर पिंग करते हो तो दे हैव दिस वेरी गुड कल्चर कि अगर तुम स्टक हो रहे हो 1-2 घंटा टाइम दो, उसके ऊपर अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, साथ में साथ वालों का भी, क्योंकि 2 घंटे के ऊपर तुमने जितना भी टाइम दिया है उसमें सोल्यूशन आना बहुत मुश्किल है। 2 घंटे तुमने सोच चुका है, अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुका है, दे थिंक दिस, मतलब वो ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। 2 घंटे के बाद सब टाइम वेस्ट हो रहा है जो भी तुम वेस्ट कर रहे हो। कोई और बंदा आएगा वो 1 घंटा बैठेगा तुम्हारे साथ सॉल्व करेगा, उसका 1 घंटा वेस्ट हुआ, उससे पहले जितना तुमने टाइम दिया वो भी तुम्हारा वेस्ट हुआ ना, वो तुम्हारा प्रोडक्टिव आवाज में जा रहा है तो तुम उसे काम भी नहीं बता सकते, बस खा रहे हो तुम अपना टाइम। इससे वजह बैठ के टीवी देख लो, 2 घंटा छोड़ दो, नहीं हो रहा है हेल्प मांग लो किसी से। तो वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से इनिशियली थोड़ा सा जब भी कोई नया फ्रेशर आता है तो इट गेट्स अ बिट हेक्टिक, 10 घंटा जा सकता है काम। होता है कि कई बार प्रोजेक्ट की नीड ऐसी आ गई कि इनिशियली कुछ गलत डिसीजंस हुए, तो बट अब उन गलत डिसीजंस को रिवार्म करना पड़ रहा है तो 12 घंटे करना पड़ रहा है। बट ये सिचुएशंस टोटली डिपेंड्स कि हाँ सब अग्री करते हैं ऐसी चीज़ों पे कि ठीक है गलत डिसीजन हुए तो केवल बन तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने गलत डिसीजन लिया। वीपी ने भी देखा था, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसे भी सही लगा था उस टाइम पे, बट अब गलत हो रहा है। तो फिर एवरीवन पुट्स इन देयर एफर्ट्स, सब 12-12 घंटे काम कर रहे होंगे, सब एक साथ काम कर रहे होंगे।
तो इनिशियली वर्क लाइफ बैलेंस इज़ लाइक 12 घंटे काम करोगे, 12 घंटे तक ईज़िली जाएगा अगर तुम इनिशियल हो, क्योंकि वो उस पेस में सेटअप होना, उसके हिसाब से चीज़ें करना, लर्न करना, इट टेक्स सम टाइम। तो 12 घंटे जाएगा। एक्सट्रीम केसेस में जा सकता है 14 घंटे, कि ठीक है काम वाम नहीं समझ में आ रहा है, किसी दिन होता नहीं आता, तो 14 घंटे भी। मैंने मैक्सिमम अपना 16 घंटे दिया है, क्योंकि 16 घंटे मेरा हो चुका था, मेरे से कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं रीच आउट करता था हेल्प के लिए। अब उसमें टॉपिक कंटेक्स्ट चेंज करता था कि ठीक है ये पार्ट नहीं हो रहा, दूसरा उठाता हूँ, दूसरे में भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसे ऐसे होकर 16 घंटे भी जाता था। तो ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस में आज सच कोई अब इन 16 घंटे का कोई डेफिनेशन नहीं होता कि सुबह 5 से शाम के 6। तुम रात के 2 बजे चालू करो काम, सुबह 8 बजे बंद कर दो। अपना सारा जितना तुमने गोल सेट किया था, तुमने सेट किया अपना गोल, सुबह 2 से 8 करूँगा, ख़त्म कर दूंगा, उतने में करके तुमने दे दिया सामने वाले को कि इसको एक बार रिव्यू कर देना। अब वो 3-4 घंटे में रिव्यू करके देगा। फिर अब अगर रिव्यू हो गया तो दैट मीन्स तुमने अपना काम कर लिया था उस 2 से 8 घंटे में, तो तुम्हें और काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ, उसने कुछ पिन पॉइंट किया, तो वापस जितना टाइम लगता है दो। इट्स मोर लाइक पूरी फ्रीडम मिलती है कि कौन से टाइम पे क्या काम करना है तुम्हें, तुम्हारी मर्जी। बस हैव योर गोल्स डिफाइंड, खुद अपने गोल्स डिसाइड करो कि मैं इतना काम कर लूँगा आज, आई थिंक ये मैं कर सकता हूँ डिलीवर, और वो उसको फिर फर्दर छोटे स्टेप्स में तोड़ो। ये सारे काम इनिशियली दे हेल्प यू आउट विद दिस। मैनेजर्स एंड जो लीड्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि एक्सक्यूज मी, कि एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको 5-6 छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ा, एंड हर एक प्रॉब्लम को बोला इसको 3 घंटा देना। खुद एस्टिमेट, पहले तो वो तुमसे ही बोलते हैं कि खुद एस्टिमेट करो कितना टाइम लगेगा। तुम 5 डाल रहे हो, बोलेंगे ठीक है 5 घंटे लेके देख लो, 5 में नहीं होगा वो 3 में हो जाएगा, तो तुम्हें रफ आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें इतने इतने टाइम में होने लग जाती हैं। तो इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हें पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मर्जी हो काम कर लो। दूसरे टर्म्स में इट्स काइंड ऑफ बैड ऑल्सो इन सम डेज, कि कई बार ऐसा होता है कि तुम चाहते हो सुबह ख़त्म करना, बट वो जो इटरेशन वाला पीरियड होता है कि मैंने पास ऑन किया, अच्छा नहीं हुआ, कुछ वापस करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों में यू लर्न अ लॉट, बट उसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू पुट इन टाइम। तो फिर तब ये 16 घंटे का वाला साइकिल चालू हो जाता है कि तुमने चीज़ें दी, उसने कुछ गलत बताया, उसको ठीक करा, क्योंकि ओवरऑल गोल वॉज इस चीज़ को आज कंप्लीट करना है किसी तरीके से। अगर नहीं हो पा रही दैट इज़ फाइन, ठीक है अगले दिन चल जाएगा, बट वो 2 दिन बाद तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा, 1-2 प्रोजेक्ट के बाद, कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, कि मैंने जो गोल खुद डिसाइड किया खुद के लिए, या तो वीपी को ही मैं बोल दूँ कि यार ये ज़्यादा है, कम कर लूँ, तो वो ही अग्रीज ऑल्सो कि ठीक है फुल लाइट है। अगर तुम खुद के लिए सेट कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू डिलीवर इट। मेजरली वहाँ पे लोग ऐसे ही काम करते हैं, सब अपना गोल खुद डिसाइड करते हैं और उस पर जो डिलीवर कर सकते हैं वो करते हैं। और तो बाकी सब तो बढ़िया है वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। रिमोट है, घर पे बैठ के करो जब मर्जी हो, ओके कोई आर्स वगैरह नहीं है। ओके। सो इसमें थोड़ा सा आपने 2 क्वेश्चन आंसर कर दिया। वैसे मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन था, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑफिस जाना होता है कि नहीं वाला चीज़, बिकॉज़ बैंगलोर में ऑफिस जाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो मेरे को लगता है। करेक्ट। एक और चीज़ था, सो बेसिकली एज़ यू मेंशन्ड यू शिप एमवीपीज़, राइट? सो मान लो आपको एक क्लाइंट के एंड से कुछ एक आया कि दे वांट टू बिल्ड, मेक यू बिल्ड दिस, सो आपने एमवीपी शिप किया। हाँ, पोस्ट दैट क्या प्रोसेस रहता है? सो डू यू बिल्ड द एंटायर एप्लीकेशन, या फिर यू योर वर्क इज लिमिटेड टू द एमवीपी, या फिर कोई और टीम फुल में एंड टू एंड एप्लीकेशन बिल्ड करती है, उसको यूनिट टेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो दूसरा टीम करती है कोई? लाइक हाउ डज इट वर्क? अंडरस्टूड। तो ऐसा सीन रहता है कि तुमने प्रोजेक्ट पिक किया, तो अब एक बार जब तुमने प्रोजेक्ट पिक कर लिया तो द गोल वुड बी कि कस्टमर ने जो जो चीज़ें पूछी हैं, एक चीज़ और अच्छी होती है यहाँ पे कि यू गेट टू फेस द कस्टमर इटसेल्फ। दे विल बी, जो भी डिसाइड होगा कि वीकली बाय वीकली मीट होगी, जिसमें तुम बताओगे कि सी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, एंड जो भी प्रोग्रेस है तुम उसको शेयर करते रहोगे कस्टमर के साथ। अब द गोल इज़ कि तुम्हें राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कि इसके लिए जो भी इंफ्रा चाहिए होगा, AWS के सर्वर्स चाहिए, जो भी चाहिए, कंपनी विल प्रोवाइड इट टू यू। तुम अपने लीड वीड से बात करो, दे विल प्रोवाइड दो सर्वर्स एंड ऑल दैट। तो एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है, अगर तुम्हें लगता है कि इस जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें यूनिट टेस्टिंग की बहुत एक्सटेंसिवली ज़रूरत है, तो यू विल हैव टू राइट द यूनिट टेस्ट ऑल्सो। लेकिन तुम्हें लगता है कि यार ये तो निकल जाएगा, यूनिट टेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा MVC, तो यू कैन पास इट ऑन कि ठीक है यूनिट टेस्ट हटाओ, हम ही 5 लोग ने कोड किया, हमें पता है कहाँ पे क्या करना है, तो हम बिना यूनिट टेस्ट के भी कोड कर सकते हैं। द आइडिया इज़ कि जब कस्टमर को देने वाले होगे तो इट शुड बी अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, जो कोई भी बंदा आए वो आके यूज़ कर सके। ऑल्दो देयर कुड बी थिंग्स कि एक साथ 1 लाख यूज़र यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रेट लिमिटिंग है, AWS के एक रिसोर्स है, उसमें लोड बैलेंसिंग इतना तुम्हें नहीं लगा रखी है, तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो मांगते ही बस एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है। जो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था उसको टेक्नोलॉजिकली वो फीजिबल है कि नहीं, बस वो ये देखना चाहते हैं। इफ़ इट इज़ फीजिबल एंड वो अपने, जनरली तुम कस्टमर को हैंड ओवर करोगे एक प्रोजेक्ट, 3 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट उठाएगा और अपने इंटरनल टीम में डिवाइड कर देगा, बोल देगा कि जाओ इसको यूज़ करो।
फिर उसका एक फीडबैक साइकिल रहेगा अराउंड 10 से 20 दिन का, कि उसके फीडबैक्स आएंगे, कहीं कुछ फट रहा है तो यू विल बी पिंग। तुम इस टाइम पे तुम दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाते हो कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, उस कस्टमर ने बोला ठीक है आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट, एंड जो भी है मैनेजमेंट का जो भी होता है कॉम्पनसेशन वगैरह सब हो गया, बिक गया प्रोजेक्ट। नाउ कम्स द अदर पार्ट कि अब तुम्हें सपोर्ट करना है 20 दिन इस प्रोजेक्ट को। तो दे वुड बी अ ग्रुप जहाँ पे कस्टमर, अगर कोई भी क्वेरीज आ रही है, यू विल बी लुकिंग इनटू फीडबैक। लेट्स सपोज रिसेंटली अगर मान लो कोई भी क्वेरी टाइप का सिस्टम डेवलप कर रहे हो कि क्वेश्चन एंड आंसर है, तो उसमें फीडबैक रहेगा कि कस्टमर जो बंदे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे वो फीडबैक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आ रहे हैं तो जो बंदा कंपनी का कस्टमर था एसेंशली, उसको भी एक्सेस रहता है। यू हैव टू, अब जब तुम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज एस्पेक्ट ऑल्सो, कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम हैंड ओवर कर दोगे एक नॉन टेक्निकल गाय को। उस बंदे को अब फीडबैक अगर देखना है तो वो तुम्हारी तरह कोड वोड में आके नहीं देखने वाला, वो उसको कुछ डैशबोर्ड टाइप का चाहिए होगा। तो यू हैव टू मेंटेन दैट फिजिबिलिटी ऑल्सो, कि एक डैशबोर्ड रहना चाहिए जहाँ पे वो एटलीस्ट ये चीज़ देख सके। तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बस वो डैशबोर्ड देखता रहता है, उसे दिख रहा है कि यार ज़्यादा नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, करेक्ट आंसर्स नहीं आ रहे, तो ही विल पिंग यू कि यार देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम इज देयर, आंसर्स करेक्ट नहीं आ रहे। देन इट्स अप टू यू कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, डीबग वगैरह करो, अनसॉल्व करके दो उसे। तो दिस साइकिल इज अराउंड 20 days रहता है। बट डाउन द लाइन अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो हो सकता है 2 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, कि तुमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, इसमें अब ये कुछ नया हो रहा है तो ये फट रहा है। तो तुम उस टाइम पे ये कॉल दे सकते हो कि जो मैंने गोल्स डिसाइड किए थे प्रोजेक्ट के लिए, कि मैं ये 5 चीज़ें कवर करूँगा। अगर रीडिंग की बात है तो मैं केवल इंग्लिश की बुक से रीड करूँगा, अब वो जर्मन की बुक ट्राई कर रहा है रीड करने के लिए, इसीलिए वो फट रहा है। और यू हैव टू मेंशन दैट एक्सप्लिसिटली कि तुमने अपने गोल्स डिफाइन कर रखे थे। तो कस्टमर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, सही बात है, हमने इंग्लिश की बात की थी, जर्मन में आ रहा है तो फटेगा। तो इट गोज इनटू द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब दे कैन पुट इट अप टू द कंपनी मैनेजमेंट कि वी वांट न्यू वर्जन ऑफ इट जिसमें ये चेंजेस होने चाहिए, या फिर दे इन्फॉर्म द कस्टमर इटसेल्फ कि नहीं इंग्लिश ही यूज़ करो, उसी के लिए प्रोडक्ट है। तो इट गोज ऑन लाइक दैट। Okay. So like एंड यप हाँ, जो लास्ट पार्ट इज रिमेनिंग, सॉरी, दैट पार्ट वाज कि अगर फाइनल शिप जो होगा प्रोजेक्ट टू द एक्चुअल कस्टमर्स, उसके लिए देयर इज दिस सपोर्ट टीम, नॉट सपोर्ट बट काइंड ऑफ अ टेक्निकल टीम, जिसका काम ये होता है वो एमवीपीज को उठाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट जो वो लार्ज स्केल डेटा को हैंडल कर सके। एंड दे टेक ओवर आर प्रोजेक्ट्स, उसको पूरा पूरा रीफैक्टर करते हैं। कहीं पे अगर कोड क्वालिटी ख़राब दिखती है उनको, तो कोड क्वालिटी इंप्रूव एंड ऑल करना, वो सारी चीज़ें। अगर उसके बीच में भी उनको भी कोई प्रॉब्लम आई कि कोई डिसीजन क्यों लिया गया था, कि एक जगह पे एपीआई की जगह वेब सॉकेट क्यों यूज़ किया गया, तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि मैंने ये चीज़ें की थी, उसके बेसिस पे ये किया था। बिकॉज उनको तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने क्यों किया ये चीज़, एंड विद सम वैलिड रीजनिंग। वो वैलिड रीजनिंग ये भी हो सकती है एट बार, कई बार, कि हमारे पास सर्वर ही वेब सॉकेट के थे, हमें वेब सॉकेट ईजी लग रहा था, एपीआई में बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इसलिए वेब सॉकेट, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट एक रीजनिंग होनी चाहिए कि वो डिसीजन लिया क्यों गया था, दैट्स इट। एंड देन दे डिलीवर दिस फाइनल प्रोडक्ट। okay. So ट्रायोलॉजी का ऑफिसेस है कि वो फुल्ली रिमोट टीम ही वो लोग चलाते हैं? देयर इज ऑफिस हैं वैसे इनके, बैंगलोर में ऑफिस इज़ देयर। आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई टेक वाला बंदा जाता है, वो मैनेजमेंट वाले लोग ही रहते हैं मेजरली वहाँ पे। एंड ट्रायोलॉजी की एक बेस, मतलब बहुत फेमस चीज़ है, देयर बूट कैंप इज़ देयर। अब वो बूट कैंप इनिशियली जब तुम ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग के 3 महीने में देयर इज़ दिस ट्रायोलॉजी बूट कैंप कहते हैं उसे, जिसमें तुम्हें हर टेक के बारे में सिखा देते हैं। मतलब डॉकर हो गया, AWS हो गया, जो भी तुम्हें समझ में आ सकता है, ग्राफ डेटाबेसेस हो गए, नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गए, सब पढ़ा देंगे। एक एक दिन में एक एक टॉपिक पूरा रटा देंगे तुम्हें, कि जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं कि तुम्हें ऐसा देख के कभी कुछ नहीं लगेगा कि यार ये क्या नई चीज़ देख ली मैंने, तुमने कभी ना कभी उसको वहाँ देखा होगा किसी एस्पेक्ट में। तो वो बूट कैंप के ड्यूरेशन में हमारे ईयर में दे टुक अस टू दुबई, वहाँ पे उनका ऑफिस है प्रॉपर, जहाँ पे वो लोग बैठाते हैं, और फिर 2 महीने वहाँ पे काम करते हो। वहाँ पे 2 महीने में यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट जो तुम्हें मिला होता है, साथ में वो पहला तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, एंड तुम उसका पूरा साइकिल देखते हो, कैसे बन रहा है, स्टार्ट स्क्रैच से किया, कैसे बिक रहा है, कस्टमर्स के साथ मीट वगैरह करते हो, फाइनली डिलीवर भी करते हो। इनफैक्ट फाइनल एक मीट होती है जिसमें तुम पिच करते हो अपना प्रोजेक्ट, और जो CTO होते हैं दे एक्सेप्ट, वो उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे एज अ पास्ट प्रोजेक्ट कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी वांटेड एंड ये बिक सकता है, इसे वी कैन एक्सेप्ट इट एज अ प्रोजेक्ट। तो वो पास या फेल होता है, वो पास फेल होता है तो फिर देयर इज़ दिस, ये लोग अपना फिर एक फाइनल सक्सेस पार्टी करते हैं, बिकॉज अब वो अच्छा बूट कैम्प गया, तो देन दे टेक यू टू सम अदर कंपनी ऑल्सो। हमारे टाइम कंट्री ऑल्सो, हमारे टाइम पे ये चीज़ थी, आई थिंक इस ईयर इन्होंने हटा दिया था बूट कैम्प वाला सीन। तो दे हैव सम माइनर बूट कैम्प चीज़ें, जिसमें इंस्टेड ऑफ एक ये 3 महीना, दे शॉर्टन इट टू अराउंड अ मंथ और वीक्स आई थिंक,
जिसमें बस टेक टेक बता देते कि ये टेक है, इनके बारे में पढ़ लो, दैट्स इट। तो बाहर वाला सीन नहीं था इस बार। ओके, तो आपका बस वही है कि इनका दुबई वाला ऑफिस आई नो। ओके ओके, सो इनका हेड ऑफिस इज इन दुबई। काइंड ऑफ नॉट द हेड ऑफिस, बट ये लेके रखे हैं, एक ऑफिस इज देयर इन दुबई, जो जहाँ पे लोग जाते हैं एंड वो इसी चीज रीजन की वजह से जाते हैं। या तो कई बार कम हैकाथॉन टाइप ऑफ कराना होगा इनको, आउटिंग चाहिए एसेंशली पूरी टीम की एक साथ, तो दे टेक यू देयर। ओके, क्वाइट क्वाइट नाइस। अपने में तो आसपास ही ले जाते हैं वैसे, बट ठीक है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा चेंज हो गया अभी पैटर्न, अगर उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, फिर एंडिंग नोट्स, एनीथिंग जो भी बच्चा कॉलेज में देख रहा है या फिर एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर जॉब स्विच, तो मेरे को थोड़ा जानना था, लाइक दे डोंट हायर एक्सपीरियंस पीपल, लाइक दे ओनली हायर फ्रेशर्स। करेक्ट, दे हायर, मतलब ट्रायोलॉजी आज सच अगर तुम इनके कोडिंग टेस्ट के थ्रू आ रहे हो तो दे ओनली हायर फ्रेशर्स, बट ट्रायोलॉजी हैज दिस अ थर्ड पार्टी नोन एज crossover.com। तो क्रॉसओवर पे यू कैन ज्वाइन एज अ, मतलब आफ्टर एक्सपीरियंस ऑल्सो, एसेंशली क्रॉसओवर होता है टू हायर कैंडिडेट्स आउट्स ऑफ इंडिया। तो देर आर मैनी पीपल जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो उनकी हायरिंग के लिए एसेंशली क्रॉसओवर रहता है। समटाइम्स अगर ओपनिंग है तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। उनका प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट, वो मेरे को भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उसके थ्रू हायर नहीं हुआ था, ओके तो उनका अलग प्रोसेस रहता है। एंड जो इंडियन हायर्स होते हैं हमारे जैसे, जिनका कोडिंग एंड ऑल इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, उनके लिए तो इट्स या कि यू हैव टू बी अ फ्रेशर देन ओनली दे विल हायर यू। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली कॉम्पनसेशन कितना रहता है, लाइक हम पैकेज को डिस्कस नहीं किए, बट इफ यू वुड लाइक टू शेयर अप्रोक्सीमेटली। हाँ, रिसेंटली जब मैंने ज्वाइन किया था, दे मेड इट अराउंड 36 इज देयर CTC, ओके एंड आउट ऑफ विच 30 इज देयर फिक्स्ड बेस कि इतना मिलेगा ही। एंड आउट ऑफ फिर देयर इज दिस वन जॉइनिंग बोनस, वन या फिर वन, हाँ वन होता है 10 बूट कैंप कंप्लीशन बोनस। तो इनिशियली मैंने 3 मंथ का बूट कैंप बताया ना, इफ दैट गेट कंप्लीटेड you get some bonus of 1 lakh। and then there is their performance bonus essentially कि हर प्रोजेक्ट, जो भी तुम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हो, वो सक्सेस अगर होते हैं कि दे गेट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर कि हाँ यही चीज़ हमें चाहिए थी, देन यू हैव सम एडिशनल बोनसेस ऑल्सो जो तुम्हें डाउन द ईयर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद तो मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली कि कितना पर सक्सेस। प्रोजेक्ट कितना मिल जाता है अप्रोक्सीमेट? पर प्रोजेक्ट इट डिपेंड्स, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इट वुडंट बी कि कई प्रोजेक्ट होंगे जो बहुत माइनस हैं, 1 महीने में ही हो गए, 3 लोग लगे 1 महीने में खत्म करके दे दिया, तो उसका डिफरेंट होगा। ओवरऑल द थिंग इज कि 32 मैंने बताया कि फिक्स्ड हो गया फर्स्ट ईयर का, जो रिमेनिंग का 4 है उसमें से 2 इज लाइक योर बूट कैंप एक्सपेंस, जो दे सेंड की दुबई जा रहे हो तो उसका एक्सपेंस है इधर, एंड कैश की जगह वो दुबई लेके चले आते हैं। रिमेनिंग 2 to 2.5 ये एक्सपेक्टेड होता है जो बोनस तुम्हें मिलेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1 साल के। ओके, नाइस। सो अगर हम वो फाइनल टिप्स के बारे में बात करें, तो अगर कुछ आपको आखिरी शब्द कुछ। आखिरी शब्द है, मतलब अरे पूरा वही डिस्कस कर लिया यार कि बी कॉन्फिडेंट, जो भी चीज़ें बता रहे हो, अगर कॉम्पिटिटिव कोडर हो बी हम्बल, एंड 1-2 प्रोजेक्ट लेके आओ यार, मतलब इट्स नेसेसरी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडर के बाद पहले राउंड में जो होगा वो रेज्यूमे स्क्रीनिंग होने वाला है। मैं तुमसे क्या ही पूछ पाएगा एज अ इंटरव्यूअर, थिंक ऑफ योरसेल्फ कि तुम इंटरव्यू लेने जा रहे हो, अपना रेज्यूमे देखो और खुद सोचो कि तुमसे क्या पूछ सकता है ये रेज्यूमे देख के, कोई बंदा मेरे से क्या पूछ सकता है डेवलपमेंट के बेसिस पे। पहले राउंड में इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। सीसी का वो सी भी नहीं पूछेगा कि तुम्हें सी हेलो वर्ल्ड भी लिख के दिखा दो, वो ये भी नहीं पूछने वाला। वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट में जाएगा, और खुद ही सोचो कि है मेरे पास ऐसी चीज़ें जो मैं आधे घंटे 40 मिनट डिस्कस कर सकता हूँ कि नहीं। अगर कोई चीज़ है देन दैट्स गुड। तुम्हें फिर वही वो इंटरव्यू गिव्स यू दिस ऑप्शन ऑल्सो, उसको नहीं समझ में आया तुम्हें बताना है कोई प्रोजेक्ट, तुम खुद बता दो, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव अ कंटेंट जो 30 मिनट चल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें डिटेल बता सकता हूँ, गुड इनफ। और उसी के लिए अगर ऐसा कंटेंट है तो दैट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स योर कॉन्फिडेंस अप। कॉन्फिडेंस इज गुड। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, हो तो कोडिंग राउंड तो निकाल ही लोगे। सेकेंड राउंड होने वाला है उसमें वही अगेन सेम, पे डिटेल्स, अटेंशन टू द डिटेल्स कि क्या डिटेल्स होने वाली हैं, और तो कुछ नहीं है, सॉल्व कर लोगे दैट्स फाइन। जो फाइनल राउंड आता है उसके लिए आई वुड से कि कीप एन ओपन माइंड, जितनी ज़्यादा वीडियोस देख सकते हो, जितने ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सकते हो कि ठीक है देयर इज दिस काफका नाम की कोई क्यू भी होती है। बस बीइंग अ फ्रेशर अगर कोई बंदा काफका का नाम भी ले ले रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है कि उसको तो कुछ भी आइडिया नहीं है, काफका जनरल पर्पस में यूज़ ही नहीं कर सकते कहीं पे। अगर वो बंदा काफका का नाम ले रहा है, उसे पता है कि काफका चलता कैसे है, कि ठीक है उसके अंदर कुछ पुश करते हैं और कुछ लोग लिसन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर वो ऐसी चीज़ें भी बता पा रहा है
तो वो भी बहुत बड़ी, ये मतलब एक्सट्रीम केस मान लिया जाता है, ये बंदा अच्छा बंदा है अगर इसको ये सब चीज़ें आती हैं। कि अगर एक एग्जांपल दे दे रहा है कि मेरे को, हाँ, अगर मान लो मेरे को मास ईमेलिंग करनी है, तो मैं डायरेक्ट ईमेल नहीं करूँगा, उसको काफका क्यू में डाल दूंगा, ताकि फिर वहाँ से जो भी हैं ईमेल रिसीवर्स वो सब लिसन करेंगे और अपने हिसाब से गेन करते रहेंगे। अगर वो ऐसी चीज़ें बता पा रहा है तो फिर वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि तुम यू वेंट अ स्टेप अहेड, तुमने देखा कि एक्चुअली इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, वो चीज़ें एक्सप्लोर की, और जितने ज़्यादा वीडियोस देखोगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ लग जाएंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट को करने के 5 तरीके हैं, 5 अलग अलग वीडियोस में मिलने वाले हैं, वो एक जगह नहीं मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो, तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है एट अ पॉइंट। मतलब मेरे को यही लगा था कि 1-2 वीडियो से नहीं हो रहा है, 3-4 वीडियो देख रहा हूँ तो यार काफ़ी सही चीज़ें पता चल गई जो बता सकता हूँ। उनमें से 1-2 भी मैंने अगर अच्छे से बता दी तो मेरे को मेरा पार लगता था कि अब तो बढ़िया जाएगा। Okay, so thanks for पूरा summarize करने के लिए. So just the last thing, यार like being a comedy programmer, normally लोग सोचते हैं we will either join HFT or product based company. So it being a हाँ, service based company, do you think it is worth it? डेफिनेटली, बिकॉज जो ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी ना इन दैट 1 ईयर, द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू विल सी, कि वो जो बंदे को कुछ भी नहीं आता इनिशियली, अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर हो तो तुम्हें डेवलपमेंट का बहुत कम चीज़ें आती होंगी, बट जो तुम्हारी ग्रोथ होने वाली है कि तुम एक कॉन्सेप्ट पे नहीं, तुम रिएक्ट पे भी काम कर चुके हो, तुम रिएक्ट नोड पे काम कर चुके हो, तुम गोलैंग पे भी काम कर सके हो सकते हो, जावा उठाई होगी, पाइथन भी पढ़ चुका होता है, AWS तुम्हें आधे से ज़्यादा रट जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तुम्हें देखेंगे ना कि 1 साल में मैंने ये सब चीज़ें कर कैसे ली, तो वो पॉसिबल ओनली एट कोऑर्डिनेशन है। ये तो मैं कहूँगा किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टेक्स्ट सीख पाओगे, 2-3 प्रोडक्ट दे पाओगे। HFT में यू विल बी मोर इनटू की डिज़ाइन एल्गोरिथम्स एंड ऑल दैट, तो अपना कॉम्पिटेटिव साइड और स्ट्रॉन्ग कर लोगे, डेफिनेटली मैथमेटिक्स AI ML वगैरह स्टार्ट कर लोगे। बट कोऑर्डिनेशन में ये है ही नहीं, तुम्हें अगर चाहिए कि AI ML ढूंढना है मेरे को 2 प्रोजेक्ट के बाद, नहीं अब मेरे को AI ML जाना है, तो तुम्हें वहाँ पे उसके भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है जाओ उसको उठाओ करो सॉल्व। तो ग्रोथ वाइज आई वुड से डेफिनेटली से कि कोऑर्डिनेशन इज़ वर्थ इट। बस बाकी चीज़ें आ जाती हैं कई बार कि वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पर्सन यार। कि मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी हाई पे कर रही है तो दे एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू, राइट? तो उसके लिए अब यू हैव टू कॉम्पनसेट इट एनी हाउ। Okay, so thanks a lot. काफी लंबा था podcast. So people who are watching and are अभी भी है अपने साथ. Thanks a lot, guys. And I will be mentioning Ankush के social. So in case you have anything, any queries apart from this, you can ping him up or write in the comments. So thanks a lot for coming, Ankush. And people who are watching, make sure to check out the Docker playlist. I will be completing it soon, and then, as mentioned previously, I will be creating the Nginx videos soon as well. So thanks a lot, and bye bye.